بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، ہم بستری کے دوران یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ اکثر مرد و خواتین حضرات یہ غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ان تمام غلطیوں کو ہم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، ایک ایک کر کے وستار سے آپ جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآنی وظیفہ ہمیشہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی خدمت میں اچھے مسائل اور وظائف اور مجرب دعاؤں کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو۔ تو اب ہم ان غلطیوں کو بتانے جا رہے ہیں جو صحبت کے درمیان، ہم بستری کے درمیان انسان اکثر ان غلطیوں کو کرتا آتا ہے اور اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ غلطی جو ہے صرف ہم تک ہی محدود نہیں ہوتی ہے اور یہ غلطیاں اولادوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو مرد و خواتین حضرات، ذرہ برابر بھی آپ اگر جو ویڈیو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو یہ قیمتی معلومات آپ سے رہ جائے گا اور پھر وہ انسان ہمیشہ اسی غلطی پہ اپنی زندگی گزار دے گا۔ چلیے ان غلطیوں کو بتانے سے پہلے ہم آپ حضرات کو مباشرت کے چند آداب بتا دیں۔ اسلام نے طہارت اور نفاست پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت اور دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے اور سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ کوئی بھی نیک سیرت اور نفاست پسند انسان اور عقل سلیم رکھنے والا انسان کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جس کی طبیعت میں گندگی اور خباثت بھری ہو۔ اب دیکھیے، مباشرت کا پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کا اہتمام کر لے۔ انسان کو ہمیشہ باوضو رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے اور انسان کو ہمیشہ باوضو بھی ہونا چاہیے، اور یہ سونے کے آداب میں سے شامل ہے کہ وضو کر کے سویا کریں۔ اب چلیے پھر ہم ان چیزوں کو بتا دیتے ہیں جو جماع سے قبل ہمیں ان چیزوں کو بالکل ہی مکمل طریقے سے جاننا ہے۔ اگر ہم جماع سے قبل وضو کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ صورت انزال کی تکلیف سے آدمی فائدے میں رہے گا، اور جماع سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس عمل سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو قیامت تک اس کی نسل در نسل جتنی بھی سانسیں آئیں گی، سانسیں چلیں گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ فضول گفتگو سے بچنا ہے، اور یہ اکثر حضرات صحبت کے دوران، مباشرت کے درمیان یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مباشرت کے وقت گفتگو کرنا مکروہ ہے، اگر اسی طرح جماع کے وقت بھی اگر جو بات چیت کیا جائے تو یہ بالکل ہی مکروہ ہے۔ اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مباشرت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت قبلہ رخ ہو کر کے جماع نہ کیا جائے۔ یہ اکثر لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ آپ کا پہلا غلطی ہوا کہ قبلہ کے رخ ہو کر کے قبلہ کے طرف جماع نہ کریں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ فضول باتیں مباشرت کے درمیان نہ کریں۔ صحبت اور ہم بستری کے درمیان ان ساری چیزوں کو نہ کریں۔ تو ناظرین، ان غلطیوں پہ آپ حضرات بالکل بچیں، اور ایک ایک غلطیاں آپ حضرات نوٹ کر کے رکھ لیں، یا تو اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لیں تاکہ جب بھی یہ غلطی آپ سے واقع ہونے والی ہو تو اس ویڈیو کو آپ سماعت فرمائیں۔ چلیے اب گنتی کرتے رہیے ان غلطیوں کو۔ کیا یہ غلطیاں آپ کے درمیان بھی پائی جاتی ہیں تو بالکل اس سے بچیں۔ میاں اور بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو۔ برہنہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہی جسم کو ننگا نہ کریں۔ یہ غلطی تو تقریباً 80% لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم بستری کے دوران بالکل ہی برہنہ نہ ہوں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ چادر وغیرہ اوپر سے ڈال لیں۔ اگر جو برہنہ ہو رہے ہیں تو اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ڈال کر کے ڈھک لیں اپنے آپ کو۔ یہ طریقہ آپ حضرات کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ شریعت کا طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہو۔ اس حدیث سے آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ وحشی جانوروں کی طرح آپ ہم بستری یا مباشرت کے درمیان ننگے نہ ہوں۔ تو یہ غلطی تو اکثر لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے۔ مرد و خواتین خود اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، تو ان غلطیوں سے
बाज आ जाएं। बीवी से हम बिस्तरी के वक्त ज़्यादा बात न करें, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आप हजरात को कि मुबाशरत के दौरान हम बिस्तरी के दौरान बातें न किया करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि सोहबत के दौरान अगर जो मियाँ बीवी आपस में या आप ख़ुद बीवी से बात कर रहे हैं तो गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। देखिए कितना बड़ा ख़तरा है। आज तो हम खूब इत्मीनान चैन और सुकून के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन हम फ्यूचर्स को नहीं जानते हैं, फ्यूचर को हम भुला देते हैं, आने वाले कल के दिन को हम बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और हम मियाँ और बीवी दोनों आदमी आपस में बहुत ही खुश होते हैं कि हमने तो ऐसा अमल किया, लेकिन नहीं, दर हकीकत वो लोग गलती पे हैं जो हजरात मुबाशरत और हम बिस्तरी के दौरान बातें करते हैं। आपने देख लिया कि गूंगा पैदा होने का खदशा है कि औलाद गूंगी पैदा ना हो। खावंद को अगर एहतलाम हो तो वो बगैर गुस्ल किए अपनी बीवी से मुजामात ना करे, क्योंकि अगर ऐसा किया, अगर जो खावंद ने, शौहर ने एहतलाम होने के बावजूद भी उसने बीवी से मुजामात कर लिया बिना नहाए धोए, ऐसा करने से दीवाना या बखील औलाद पैदा होने की निशानी है। तो देखिए ना कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कितना बड़ा नुकसान है कि हमारा औलाद जो है दीवाना हो, मजनून हो, पागल हो, बखील हो। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा औलाद हम पालें? तो अब देखिए जो हमने गलतियां बताई हैं, अगर जो आप में ये गलतियां पाई जाती हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों हजरात गौर से समाअत फरमाया, अगर जो पाई जाएं तो फ़ौरन उसे बाज आ जाएं। और हम बिस्तरी से जब फ़रागत हो तो बाद में मियाँ और बीवी दोनों को इस्तिंजा कर लेनी चाहिए। बस अगर जो आप ऐसा कर लेते हैं तो लाइलाज बीमारियों का अंदेशा नहीं रहेगा, बच जाएंगे। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान सबसे बुरा अदब ये है कि बीवी की शर्मगाह को देखा जाए। तो बीवी की शर्मगाह को ना देखना, ये शरीयत कह रहा है कि बीवी के शर्मगाह को ना देखें। हम बिस्तरी के दौरान, सोहबत के दौरान बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से हमें तो मालूम नहीं होता क्या होने वाला है। हम देख लेते हैं लेकिन हमको अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन शरीयत कह रही है कि रुको, ऐसा नहीं करना चाहिए, बीवी के शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए हम बिस्तरी के दौरान। लेकिन बाद में क्या होने वाला है इसका पता नहीं होता हमें, इसलिए हम ऐसा कर बैठते हैं। अगर जो ऐसा करते हैं तो बाज आ जाएं, इसलिए कि बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर जो हम दौरान मुजामियत शर्मगाह को देखते हैं तो ऐसा करने से औलाद अंधी पैदा होने का अंदेशा रहता है। अल्लाह अकबर। देखिए औलाद अंधी पैदा होने का अंदेशा है, इसलिए इन तमाम चीज़ों से बाज रहें। और इसके अलावा ये गलतियाँ जो कुछ भी हमने बताई हैं, मुबाशरत के दौरान बेशुमार लोग गलतियाँ करते हैं, जिसमें से ये मैंने चंद गलतियाँ बताई हैं। आप हजरात इस पे अमल पैरा हो जाएं। लेकिन अब अगर जो मुबाशरत करने के बाद ये गलतियाँ ख़त्म करें अपने अंदर से, और मुबाशरत दोबारा करने का, हम बिस्तरी दोबारा करने का इरादा है, तो उस पर हम क्या करें, चलिए उसे हम जानते हैं। और जिस भी मर्द औरत से लादीनी के बुनियाद पर, बग़ैर जानकारी की बुनियाद पर ये सारी गलतियां हुई हैं तो उससे तौबा करें और इस्लामी तरीके से मियाँ और बीवी अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो चलिए, अब तक तो ये गलतियां आप हजरात देख रहे हैं कि ये गलती है, ये गलती है। आप अगर जो पाई जाए आपके अंदर तो उस पर सुधार करें। चलिए, उसी रात में अगर जो दोबारा हमें जमा करने के ख्वाहिश पैदा हो जाए तो अब हम क्या करें। दोबारा जमा का इरादा हो तो वज़ू कर के करें। पहले वज़ू कर लें और फिर अज़ू ख़ास को अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर से दोबारा सोहबत करें, दोबारा हम बिस्तरी करें। जब आदमी अपनी औरत के साथ जायज़ तरीके से हम बिस्तरी करे तो उसका इरादा दोबारा जमा करने का हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा झेल बताए हुए फरमान को पेश नज़र करें। वज़ू करे, जब तुम में से कोई घर वाली से हम बिस्तरी करे फिर दोबारा जमा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वज़ू कर ले। एक रिवायत में है कि 2 दफ़ा के दरमियान, एक रिवायत में है कि नमाज की तरह वज़ू करे। अगर जो दोबारा
जमा का ख्वाहिशमंद है। तो अब देखिए, कुछ रिवायतों से ये साबित हो रहा है कि गुस्ल भी करें, और कुछ हदीसों से साबित ये होता है कि अगर जो दूसरी मर्तबा जो करना है तो वज़ू करके करें। देखिए, शरीयत ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है और कितना हमें पाक और साफ़ और सुथरा रहने का रास्ता बता रहा है। तो हमें लादीनी को छोड़ करके दीन अख्तियार करना है और उस पे हमें अमल करना है। शरीयत के बताए हुए तरीक़ों पे हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अब देखिए, फ़ितरी और गैर फ़ितरी तरीक़ा क्या होता है सोहबत करने का, फ़ितरी और तरीक़ा क्या होता है, उससे भी आप हज़रात मुख्तसर अंदाज में समाअत फरमा लें। इसके अलावा सोहबत और हमबिस्तरी का जो फ़ितरी और गैर फ़ितरी तरीक़ा बताया गया है, हमें चाहिए कि इस्लामी तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा यही है और कुरान भी इसी तरीक़े से हमें अपनी ज़िंदगी बशर करने का ताकीद करता है। तो तरीक़ा उसका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर हो। यही तरीक़ा एक आसान है और इसी तरीक़े पर इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीक़ा कबूल नहीं किया गया। चुनांचे सारे हैवानात भी फ़ितरी तरीक़ा अलग अलग होता है। लेकिन आइए हम कुरान पाक के सूरा आराफ और आयत नंबर 189 में यही तरीक़ा के तरफ इशारा किया गया है, जिसका मफ़हूम और तर्जमा ये है, जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो उसको हल्का सा हमल रह गया। इस तर्जमे से ये बात समझ में आती है कि मर्द अगर जो ऊपर हो, औरत नीचे हो, तो इसमें औलाद के ठहरने का ज़्यादा चांस होता है। यही तरीक़ा सही है। इसके अलावा इस सूरत में यही हो सकती है कि कोई भी तरीक़ा इसके अलावा दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी को हमें बसर करना है। अब देखिए, और इसी तरीक़े पर अमल करने से मर्द और औरत दोनों को आसानियाँ होती है। चुनांचे शेख रईस हकीम अबू सेना ने भी अपना कुल्लियात कानून में इस तरह के कलाम को और तर्ज अमल को पसंद फरमाया है। शेख रईस के नज़दीक जमा के तमाम मुश्किलों में बड़ी मुश्किल ये है और ख़तरनाक चीज़ ये है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द उसके नीचे लेटा हुआ हो। ये सबसे ख़तरनाक अमल है और ये भी एक बुराई है। इस तरीके से सोहबत न करें, जमा न करें, हम बिस्तरी न करें। इस सूरत में मनी के इखराज में दिक्कत होती है, उसके अंदर बाकी रह जाने का अंदेशा होता है और जिसकी वजह से अज़ियत उठानी पड़ती है। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो आप हज़रात को हमने बताया। तो आप भी अपना कमेंट करके बताएंगे कि क्या कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ आप हज़रात के अंदर पाई जाती हैं, और जो कुछ हमसे बताने में रह गई है अगर जो आपके ज़हन में हो तो बताएं। अगर जो कमेंट में अगर जो हमें बता रहे हैं तो उस पर अगली वीडियो इंशाअल्लाह रहमान हम लेकर के हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। इस तरह वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं